continuing with this, I have mentioned several times that I love the consistency of the Python language. अभी हम लिस्ट स्लाइसिंग की तरफ जाने लगे हैं कि उसके इंडेक्स के साथ हम लिस्ट के किस तरह टुकड़े कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करो, कहाँ से एंड करो, क्या एलिमेंट हासिल करें. The interesting part is to develop the sample code जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. I took the code that I had written for the string object, ठीक है, string data type, और उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग को जो है ना लिस्ट में तब्दील कर दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वो एक जैसी रहीं. वही सिंटैक्स, वही टेक्निक्स, वही सारी स्लाइसिंग के आदाब जो हैं. So let's take a look at the code as to how we manipulate strings. We can use, let's take a look directly, let's jump into the code. इस दफ़ा मैंने ये लिस्ट बनाई है, my list, the quick brown fox. 4 एलिमेंट्स हैं, चारों अंग्रेजी के अल्फाज हैं. Print quick in my list. अगर आपको याद हो तो हमने यही चीज़ की थी, print quick in my string. ठीक है, वो स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग का जवाब था ट्रू और फॉल्स. Now I'm asking the question, is quick an element of the list? And the answer is again going to be true or false. So let's run it. String define हो गई, list define हो गई. Print quick in my list, true. It does exist in this list. Print quick not in my list. क्या ये इसमें मौजूद नहीं है? False. ये तो मौजूद है. So not in will return false. Sub list एक लिस्ट है, उसके अंदर से मैं एक छोटा सा हिस्सा हासिल करना चाहता हूँ. यहाँ पे हमें मसला हो जाएगा. As I said, I had copied this code from the string object. So let's change it from 1 to, इसको रोक देते हैं ज़रा. Let me just edit it. So let's say from element 1 up to element 3, and then let's say element 2 up to nothing, element something up to 3. All right, let's start again. इसको हम रन करके देखते हैं अब क्या होगा. याद रहे कि हमारी लिस्ट जो है वो we are running into, sorry, ये रह गया ब्रैकेट. When you type in real time, you can make, of course, syntax errors, which is quite common. Starting the program again, we will quickly jump through the print part, which we already did. And now I said sublist is equal to my list, square brackets, 1:3. अब थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्सिंग वाले ब्रैकेट्स हैं, जिसको हम स्लाइसिंग ऑपरेटर कहते हैं. इनका लिस्ट के साथ वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, अदर देन द फैक्ट कि हम लिस्ट के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं. So when we say sublist is my list of 1:3, what do we get? Let's take a quick look at this. आपको यहाँ से ना डिबग विंडो में हम देख लेते हैं. सबलिस्ट जो है, मैंने कहा उसमें एलिमेंट 1 आएगा और 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा. ये बिल्कुल वही बिहेवियर है जो स्ट्रिंग्स के साथ और सब स्ट्रिंग के साथ हो रहा था. So element 1 कौन सा है? ये 0 was the, 1 was Q. So the new list का 0th element becomes quick. उसका element 2 was brown. So element 2 brown जो है इधर आ जाएगा. 3 नहीं आएगा, वो शामिल नहीं होता. जब भी हम स्लाइसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसका एंडिंग लिमिट इस्तेमाल नहीं होती. So my list of 1:3 means my list of 1 and my list of 2. Just 2 elements will be part of the new list. So sublist has been defined. We can print it when it says quick and brown, which is fine. If I say rest list is
2 colon nothing. Exactly the same way as in strings. It means एलिमेंट नंबर 2 इंडेक्स 2 से शुरू हो और बाकी की सारी लिस्ट इसमें इंक्लूड कर दो. अब 2 जो है वो ब्राउन है. 0 1 2 2 से लेके बाकी सारी मीन्स ब्राउन एंड फॉक्स. लेट्स रन इट एंड वी विल फाइंड ब्राउन एंड फॉक्स इन द प्रिंट आउट. लेफ्ट लिस्ट, लेफ्ट ऑफ द लिस्ट वो क्या है? मैंने कहा जी शुरू कहाँ से करना है. I didn't specify it. That means शुरू ये beginning से होगा. कहाँ तक चलना है? Last digit specified -1. So it will be 0 1 2. 3 elements होंगे और वो 3 elements जो हैं वो होगा the quick brown. ये 3 elements इस्तेमाल होंगे. If you go back to the strings, this is exactly what we were doing with strings. The same thing applies over here when we go from indexing. लिस्ट के ऊपर और हम स्लाइसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. अखीर वाला एलिमेंट उसका इंडेक्स इज ऑल्सो -1. इट इज़ ऑल्सो लेंथ ऑफ द लिस्ट -1, ये उसका इंडेक्स है. लेकिन अखीर वाले का इंडेक्स -1 भी है. जैसे स्ट्रिंग्स के भी लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 था. सो वी कैन हैव एन एंड लिस्ट विच सेज माई लिस्ट ऑफ -3 to -1. लेट्स टेक अ लुक. इसकी वैल्यू क्या आती है? वो आती है क्विक ब्राउन. भाई -1 तो मैंने कहा था ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है, तो वो फॉक्स प्रिंट क्यों नहीं हुआ? ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर डूइंग स्लाइसिंग यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर, द लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता रिजल्ट के अंदर. सो व्हेन आई सेड -3 कोलन -1, तो -3 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा. सो इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट कि जी अखीर वाली लिस्ट -3 से शुरू होके क्या है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़ -3 कोलन नथिंग. जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट किया था, हम उसी तरह एंड ऑफ द लिस्ट भी हासिल कर सकते हैं बाय सेइंग कि जी क्विक ब्राउन फॉक्स -3 -2 -1, इन तीनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको इकट्ठा करके एक नई लिस्ट मुझे दे दो. सो द न्यू लिस्ट इज़, ये हमारी जो एंड लिस्ट बनी है. आई ऑल्सो मैंशनड स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना. वो एक स्ट्रिंग और दूसरी को कॉन्केटिनेट करके उसने एक लंबी स्ट्रिंग हमें दे दी थी. द सेम थिंग अप्लाइज टू लिस्ट. इफ़ यू ऐड लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, तो लिस्ट ए के तमाम एलिमेंट्स फिर उनके अंदर लिस्ट बी के तमाम एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे और ये एक लंबी नई लिस्ट बन जाएगी. मैं कहता हूँ न्यू लिस्ट इज़ इक्वल टू माई लिस्ट पास्ट माई लिस्ट. आई एम जस्ट फीलिंग लेजी. मैंने उसी लिस्ट को कहा कि जनाब उसको आपस में ऐड कर दो. तो क्या होता है? लेट्स टेक अ लुक. व्हेन आई प्रिंट दिस, इट सेज द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स. एक लिस्ट दूसरी लिस्ट आपस में ऐड होंगी और एक लंबी लिस्ट बन गई. हर चीज़ उसके अंदर डबल है. We've already mentioned the fact that duplicates don't matter, so obviously the duplicates don't matter. I have the, I've quick brown fox, and I have got the again, and then I've got quick again and brown again. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिस्ट लंबी हो गई है, इसकी अगर हम लेंथ डिटर्मिन करना चाहें तो वो भी दुगनी हो गई होगी. टाइप ये लिस्ट है, इसके वेरिएबल्स बिल्कुल सारी चीज़ें वही जो हमने स्ट्रिंग पे इस्तेमाल की थी. मैंने आपको बताया ये कोड ही वही है, बस स्ट्रिंग की जगह पे मैंने लिस्ट बना दी है और उसके बाद स्लाइसिंग ऑपरेटर उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है. एंड दिस इज़ द नाइस थिंग विद पाइथन, दैट देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज. इफ़ यू मास्टर वन डेटा टाइप, समझ लें कि आपने बहुत सारे और डेटा टाइप्स को भी मास्टर कर लिया.